Student, in the new lecture of zoology, myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. Today I am going to discuss the second step of immunity. In previous video I have discussed what are immunity, how many different types of immunity, and you have already studied it. Those who are not studying about the previous lecture, please go through the channel and read the previous lecture to maintain the continuity of subsequent lectures. Students, in previous lecture I have discussed that immunity is of two different types. The first type of immunity is non-specific and they are innate immunity. Innate means inborn immunity, students. And second type of immunity which I will discuss in this lecture is adaptive immunity. This is adaptive immunity. This is an important aspect about the lesson of class 12th NCERT, Human Health and Disease in Immune System. And to score more than 350 units in biology and more than 700 plus marks in medical exam, you have to focus one of the most important topic from each and every subject. In biology, especially in class 12th, this lesson is a broad lesson and so many questions can be arises from this lesson. So be concentrate and focus on this lecture. Students, in innate and adaptive, two different types of immunity I have discussed, but in detail this innate immunity, which is inborn immunity inherited into a child from their parents, is non-specific because it includes barriers. I am telling about innate immunity. This immunity is inborn, inherited into the child from their parent, and this is non-specific, fight against all types of antigens. This immunity fight, and it include 4 different kinds of barriers named physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier. But today I am discussing about the adaptive immunity, which is also known as acquired immunity, ACQUIRED, acquired immunity. This acquired immunity is specifically a specific immunity. This is known as a specific immunity. Whenever the question is based that which type of immunity is specific, without any hesitation you have to select this adaptive immunity. क्यों ऐसा करेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी इम्यूनिटी के बारे में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं टुडे। देखिए मैं इसको डिस्कस करने चल रहा हूं आज के लेक्चर में। दिस इज द लेक्चर प्रोग्राम कि ये इम्यूनिटी दैट इज एडाप्टिव इम्यूनिटी इज नॉट हेरिटेबल. दिस इज एक्वायर्ड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. And this adaptive immunity, acquired immunity, is a special category of the immunity which is regulated by a special cell, lymphocyte and their protein army antibodies. That means whenever you start this lecture, you must remember that this type of immunity is regulated
by lymphocytes, lymphocytes, and protein army named as antibodies, antibodies, antibodies. Two special components named as lymphocytes and antibodies regulate this type of immunity. तो एक क्वेश्चन यहां भी आपका सॉल्व हो जाता है कि एक ऐसी इम्यूनिटी जो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के द्वारा चलती हो, उसी का नाम क्या होगा? एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यहां पर इसको मुझे डिटेल आपको समझाना है, तो मैं कैसे इसको समझाऊंगा? इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लुक एट डायग्राम ऑफ ए पर्सन। इसको आप आसानी से इजीली मेमोराइज कर सकें, इसलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको पूरा याद हो जाइए। एक पर्सन के अंदर, जिसके अंदर हमें इम्यूनिटी समझानी है, और कौन सी इम्यूनिटी समझानी है मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं आपको, जिससे कि आप समझ पाओ इस चीज़ को कि हम एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पर्सन है और इसमें एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या हुई? तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर्सन को जब मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसका बर्थ हो चुका है, मीन्स आफ्टर बर्थ की बात मैं कर रहा हूँ। AFTER, आफ्टर बर्थ, BIRTH, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। लुक दिस, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जब कभी भी कोई एक एंटीजन का इन्फेक्शन इसकी बॉडी में होगा, सपोज करो ये एंटीजन्स हैं, एंटीजन्स को हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है कि इसको हम लोग पैथोजन भी बोल सकते हैं, किसी टॉक्सिक एजेंट्स को भी हम एंटीजन बोल सकते हैं। एंटीजन का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? एंटीजन का दूसरा नाम हम पैथोजन भी दे सकते हैं, जो डिजीज़ काज करता है। ये एंटीजन एक पैथोजन भी होता है, और जब कभी भी यह पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है, इसके अंदर एंट्री करेगा, तो इस एंट्री को हम टेक्निकली इन्फेक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इन्फेक्शन। दिस इज अ इन्फेक्शन। कि बाहर का कोई भी एंटीजन या पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो चुका है? इन्फेक्शन हो चुका है। क्लियर? और ये जो पैथोजन है, मीन्स एंटीजन या पैथोजन, यह इस पर्सन के, ध्यान रखिएगा कि इस एंटीजन से फाइट करने की एबिलिटी पहले से इसके अंदर नहीं है। अगर पहले से होती तो हम क्या बोलते हैं उसको? इनेट। लेकिन अब पहले से इसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो जब यह पैथोजन आएगा तो यह पैथोजन इसके इम्यून सिस्टम को, IS मीन्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। IS का पूरा नाम क्या होगा? इम्यून सिस्टम को। क्लियर है? और इसका इम्यून सिस्टम जब एक्टिव हो जाएगा तो इसका इम्यून सिस्टम दो चीज़ों को बनाएगा। क्या भाई? तो आप देखिए, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज, मीन्स यह इम्यून सिस्टम एक सेल बनाएगा, और इस सेल का नाम क्या होगा? लिम्फोसाइट। इस सेल से क्या बनेगा? तो इस सेल से एंटीबॉडीज़ बनेंगे। देखिए, ये एंटीबॉडीज़ ऐसे होते हैं, वाई लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, वाई शेप का। इसको आप 4 आर्म्स के थ्रू दिखा सकते हैं, ऐसा। ये लिम्फोसाइट, LYMP, लिम्फोसाइट, और ये एंटीबॉडीज, बनेगा। और इस इम्यून सिस्टम से जो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बनेगा, ये दोनों में से कोई एक या फिर दोनों मिल करके इसको क्या करेंगे? तो आप देखिए ना, ये और ये दोनों इस एंटीजन को किल करेंगे, मीन्स इस पैथोजन को मार देंगे।
तो इस पर्सन के अंदर जो एंटीजन और पैथोजन एंट्री किया हुआ था, जिसकी वजह से इसके अंदर डिजीज हो गई थी, रोग हो गया था, इस डिजीज को ठीक करने के लिए इसकी खुद की बॉडी ने सेल्फ की बॉडी ने क्या किया, तो एक अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। उसके इम्यून सिस्टम ने लिम्फोसाइट बनाया, लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज बनाया, और ये लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज मिल करके इस पैथोजन को किल कर देंगे, तो यह व्यक्ति हेल्दी हो जाएगा। ये पूरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यह प्रॉपर्टी आफ्टर बर्थ की बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि यह कैसी इम्यूनिटी है? एडाप्टिव है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इस एडाप्टिव इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूं। पहला केस आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन पर आइए। फर्स्ट पर जो इसके अंदर, आप खुद सोचना, जो इसके अंदर ये लिम्फोसाइट बना, क्या बना? लिम्फोसाइट। और क्या बना इसके अंदर? ये एंटीबॉडीज बन गए। ये लिम्फोसाइट L और ये एंटीबॉडीज AB, ठीक है ना, बना। क्या ये लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज इसके बॉडी के खुद के प्रोटीन को और सेल्स को मारेगा क्या? नहीं मारेगा ना, नहीं मारेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो भी ये लिम्फोसाइट बना है, यह लिम्फोसाइट और यह एंटीबॉडी जो इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है, इस लिम्फोसाइट से LYMP, ऐसे लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बन रहा है। क्या ये दोनों बॉडी के खुद के प्रोटीन को, सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन को किल करेंगे क्या? आंसर है नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि इन दोनों के अंदर एक एबिलिटी है कि ये सिर्फ फॉरेन एजेंट को किल करेंगे और बॉडी के खुद के टिश्यू, सेल्स और प्रोटीन को डैमेज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? मीन्स ये सेल्फ के, बॉडी के सेल्फ के किसी भी कंपोनेंट को डैमेज नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर नॉन सेल्फ होगा, कोई बाहरी होगा, तो इस बाहरी एजेंट को क्या करेंगे? किल कर देंगे। मीन्स दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी हैव एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। समझ में आई बात? तो क्या कर सकता है ये इम्यूनिटी? तो डिफ्रेंशिएट कर लेगा। DIFFERENTIATE, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में कि जो ये एडाप्टिव इम्यूनिटी है, यह सिर्फ और सिर्फ बाहरी एजेंट जो बॉडी में एंट्री करेंगे उनको किल करेगा। बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ है, बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं और प्रोटीन हैं, उनको ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिकॉज दिस इम्यूनिटी एडाप्टिव हैव एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एक पॉइंट। दूसरा देखिए, अब सेकेंड स्टेप पर आओ। सेकेंड स्टेप को समझो आप लोग। जैसे इस पर्सन के अंदर इसी सेम कई कंडीशंस को मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं कि ये एक पर्सन की बॉडी है, ये पर्सन है, क्लियर है ना, जिसके बारे में मैं समझा रहा हूं। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक इन्फेक्शन हुआ और ये इन्फेक्शन X टाइप के, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, X टाइप ऑफ एंटीजन, X टाइप के एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ है, X टाइप का ये। तो फिर इस X टाइप के एंटीजन को किल करने के लिए इसके शरीर में क्या बना? तो इसके शरीर में देखिए, इसको किल करने के लिए ये Y शेप्ड की एंटीबॉडीज़ बन गई और ये सेल्स बन गया। ये क्या बना? एंटीबॉडीज AB का मतलब एंटीबॉडीज और इसका मतलब लिम्फोसाइट, ठीक है, ये दोनों बना। और ये इसको देखिए, इसको किल करेगा, ये इसको किल करेगा,
फिर इसको मार दिया जाएगा, मतलब ये किल हो जाएगा, किल्ड, KILL, किल मतलब मार दिया जाएगा, ये एंटीजन। यहाँ जो आपको बताना मैं चाहता हूँ ये कि जो ये एंटीबॉडीज बना ये वाला, इसको किल करने के लिए यह एंटीबॉडीज X टाइप का बना, और जो ये लिम्फोसाइट इसको किल करने के लिए बना ये भी X टाइप का बना। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो देखिए ना भाई, कितना सिंपल सा केस कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कोई एक पर्सन है, इस पर्सन के अंदर कोई X टाइप का एंटीजन या पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ तो इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और ये इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बनाया, और जो एंटीजन यहाँ पर इन्फेक्शन किया था उसी एंटीजन के रेस्पेक्ट में उसके अगेंस्ट वर्क करने वाला X टाइप का एंटीबॉडीज और X टाइप का लिम्फोसाइट बना। तो X टाइप का लिम्फोसाइट और X टाइप का एंटीबॉडीज, इसने X एंटीजन को किल कर दिया। बात थोड़ी और आगे बढ़ानी है, कैसे? तो आप देखो, अगर मान लो इसके शरीर में, इस पर्सन के शरीर में एक Y टाइप का, ध्यान रखिएगा, Y एंटीजन का इन्फेक्शन हो जाए, ये Y एंटीजन का इन्फेक्शन हो जाए, क्लियर हुआ? तो क्या ये X एंटीबॉडीज, क्वेश्चन है, क्या अब X के लिए तो इसके अंदर बन गया, क्या ये X टाइप का एंटीबॉडीज और X टाइप का लिम्फोसाइट Y को भी किल कर देगा क्या? बोलिए। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आंसर बोल सकते हैं आप, क्या भाई? तो जब कभी X को मारने के लिए X के टाइप के लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बना तो ये एंटीबॉडीज क्या Y को भी किल करेगा क्या? आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सिर्फ X को मारने के लिए हुआ है, Y को मारने के लिए नहीं हुआ है। तो X का इन्फेक्शन हुआ तो X का एंटीबॉडीज बना, अगर Y का इन्फेक्शन होगा तो Y का एंटीबॉडीज बनेगा, Z का इन्फेक्शन होगा तो Z का एंटीबॉडीज बनेगा। तो हर एक एंटीजन के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है और लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। दैट मीन्स ये तो बात क्लियर हो गई ना कि एक प्रकार के एंटीजन के लिए एक प्रकार का इम्यूनिटी, दूसरे प्रकार के एंटीजन के लिए दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी, तीसरे प्रकार के एंटीजन के लिए तीसरे प्रकार की इम्यूनिटी। दैट मीन्स दिस इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। ये कैसी हो गई? स्पेसिफिक हो गई। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, दिस इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक हुई? तो आंसर था कि यह सिर्फ एक प्रकार की इम्यूनिटी एक ही प्रकार के एंटीजन को किल करेगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, इसको अब मैं मिटा देता हूं पूरी तरह से। देखो, दो प्रॉपर्टी समझ में आई कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, फिर आई समझ में कि दिस इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन। अब आगे का जो स्टेप इसमें चलता है वह स्टेप थोड़ा इससे अलग हट करके है। देखिए क्या है, वो स्टेप क्या कहता है? कहता है, इसी बॉडी के रेस्पेक्ट में फिर से आपको समझाएंगे, शरीर के रेस्पेक्ट में कि कैसे होता है काम ये। फिर आप देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसी पर्सन की जिसकी दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी मैं समझाने चल रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी। ये पर्सन है और इस पर्सन के अंदर एक एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, एंटीजन। और ये एंटीजन का मतलब क्या हुआ? पैथोजन। दिस एंटीजन मीन्स पैथोजन। और इसका बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, दे इंटर्ड इनटू द बॉडी। ओके। और ये जो पैथोजन है, यह पैथोजन
बॉडी के ही, इसकी बॉडी के ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। दैट मीन्स दिस पैथोजन मीन्स एंटीजन एक्टिवेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा इस पर्सन के अंदर। जैसे मेरा शरीर है, कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री कर गया, तो वह एंटीजन या पैथोजन हमारे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और जब ये इम्यून सिस्टम, मान लीजिए कि ये इम्यून सिस्टम है, दिस इम्यून सिस्टम जब कभी भी एक्टिवेट होगा तो इस इम्यून सिस्टम के द्वारा दो चीज़ें बनेंगी। क्या क्या बनेगा? तो एक तो आपने देखा कि एक लिम्फोसाइट बन जाएगा, दिस विल बी लिम्फोसाइट, अभी आपने पढ़ा था। और एक क्या बनेंगे? तो एक एंटीबॉडीज बनेंगे इस तरह के, ये एंटीबॉडीज बन जाएंगे, दिस विल बी एंटीबॉडीज। क्लियर? अब क्या कहता है, ये दोनों ही चीज़ें, दोनों का मतलब सामने में रखूं, ये लिम्फोसाइट यहाँ पर और ये एंटीबॉडीज यहाँ पर इस एंटीजन को किल करेंगे, ठीक है ना। और टेक्निकली जब हम कभी मेडिकल के लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये जो एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट इसको किल करता है, इसके प्रति फाइट करता है, तो इसको एनकाउंटर कहा जाता है। एनकाउंटर, दिस इज नोन एज, किलिंग इज नोन एज एनकाउंटर। और मान लीजिए कि जब इस दोनों ने इस एंटीजन को एनकाउंटर किया, मारा, क्या किया? एनकाउंटर कर दिया इसका, तो फिर क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स रिजल्ट क्या मिला हमें? तो इसकी वजह से देखिए, अब यहाँ आता हूँ मैं, इसकी वजह से पैथोजन किल्ड, मार दिया गया। अब यहाँ के बाद असली स्टोरी इसकी शुरू हो रही है। क्या चीज़? कि जो लिम्फोसाइट और जो एंटीबॉडीज जिस पैथोजन को किल किया, मान लो कि ये पैथोजन कैसा था भैया? एक्स टाइप का था, तो ये लिम्फोसाइट भी कैसा बना होगा? एक्स टाइप का बना होगा ना। और एंटीबॉडीज भी कैसा बना होगा? एक्स टाइप का बना होगा, एक्स टाइप का, क्योंकि एक्स एंटीजन को किल करना था। और इन दोनों ने मिल करके इस एंटीजन को मार दिया, जिससे कि यह पर्सन हेल्दी हो गया, स्वस्थ हो गया। अब क्या होगा? अब ये दोनों, जैसे देखिए, ये लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज, दोनों को मैं लाता हूं। आफ्टर एनकाउंटर मीन्स एनकाउंटर के बाद, आफ्टर एनकाउंटर चेंजेज क्या होंगे? चेंजेज बदल जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे? इनटू द मेमोरी सेल्स में। ये ध्यान रखने वाली टर्म है, हमारे बुक एनसीईआरटी का बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है। क्या प्रोमिनेंट वर्ड है? द वर्ड है कि जब किसी एक प्रकार के, वन टाइप के पैथोजन को एक ही प्रकार का लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज किल करता है, तो किलिंग की प्रोसेस के बाद वह लिम्फोसाइट और वह एंटीबॉडीज चेंज हो जाते हैं, किस में? मेमोरी सेल्स में। इसका मतलब अगर ये हेल्दी पर्सन है, देखिए, फिर इसी पर्सन को मैं इधर बना दे रहा हूं, जो किसी डिजीज से रिकवर्ड हो चुका है। ये पर्सन, यही वाला पर्सन, देखिए यही वाला पर्सन है, मीन्स ये क्या हो चुका है? तो आफ्टर डिजीज अब ये कैसा हो गया होगा? दिस विल बी हेल्दी। क्लियर? कि जब कोई पैथोजन की एंट्री हुई होगी तो उसके अंदर एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट बने होंगे, वो उसे मार दिए होंगे। तो जब मर गया, इसका मतलब कि यह पर्सन क्या हो गया? अब हेल्दी हो गया। और इस हेल्दी पर्सन के अंदर आफ्टर डिजीज क्या पाई जाएंगी? तो आप देखिए, इसके अंदर अब ये सेल्स पाई जाएंगी। कौन सी? तो आंसर है मेमोरी सेल्स, MEMORY, मेमोरी सेल्स।
क्लियर है ना। और यहाँ पर क्या मुझे बताना है, आपको बताना ये है कि अब ये मेमोरी सेल्स किस टाइप के लिए है, तो एक्स टाइप के एंटीजन को मारने के लिए है, एक्स टाइप की है। दिस मेमोरी सेल विल बी एक्स टाइप। और मान लीजिए कि वो ठीक हो गया, कुछ सालों तक जिंदा रहा, आगे बढ़ता गया, उसका समय बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, लेकिन जिंदगी के किसी समय में 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अचानक से फिर इसी एक्स का इन्फेक्शन हो गया, सेम डिजीज का इन्फेक्शन हुआ। फिर से देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि देखिए एक्स एंटीजन क्या कह रहा है, तो रीइन्फेक्शन, री मतलब पुनः इन्फेक्शन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सेम है, सेम टाइप है, एक ही प्रकार का। जो पहले हुआ था, जिसको मार दिया गया था, अब वो व्यक्ति स्वस्थ हो चुका था। स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में फिर कभी 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद अगर उसी पैथोजन का, उसी डिजीज का इन्फेक्शन फिर से हो गया, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उस डिजीज से फाइट करके निकला हुआ है, समझ में बात आ रही है ना, तो उसके शरीर में क्या पाई जाएंगी, मेमोरी सेल्स। किसकी मेमोरी सेल्स, तो वही एक्स एंटीजन जो 10 साल बाद फिर से इन्फेक्शन कर रहा है, 2 महीने बाद कर रहा है, 6 महीने, अलग अलग ड्यूरेशन इसका होता है। मेमोरी सेल कितने दिन तक काम करेगी, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन मान लीजिए री इन्फेक्शन हुआ तो इसके शरीर में आया। अब देखिए, जैसे ही इसके शरीर में इसका इन्फेक्शन हुआ, इस व्यक्ति की मेमोरी सेल्स, ये जो मेमोरी सेल्स हैं, तुरंत इसको क्या करेंगे, किल कर देंगे, किल्ड इमीडिएटली। अब इमीडिएटली इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड में मार देगा, उसका भाई एक ड्यूरेशन है, सब कुछ फिक्स है। बट आपको जहाँ तक समझना है, मेडिकल के हिसाब से आपको यही समझना है। तो जैसे ही री इन्फेक्शन हुआ, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ, तो उसके शरीर में पहले से जो प्रेजेंट मेमोरी सेल्स हैं वह तुरंत उस इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर देंगी, जिससे कि इस व्यक्ति को अब दूसरी बार ये डिजीज नहीं होगी। पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, तो इसके शरीर में लड़ने की क्षमता ही नहीं थी, वो तो जानता ही नहीं था कि एक्स एंटीजन क्या होता है, वाई क्या होता है। एक्स का जैसे वायरस का, बैक्टीरिया का उसको नहीं पता है। एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, एक्स टाइप का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो इसको समझने में, शरीर को समझने में ही टाइम लग जाएगा। तब तक बैक्टीरिया से इस व्यक्ति के अंदर डिजीज हो जाएगी, रोग हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये रोग होने के बाद ये पैथोजन इसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, फिर इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज बनाएंगे, एक्स टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही बनाएंगे। फिर इसके बाद से ये जब इसको किल कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद से, रोग ख़त्म हो गया, तो उसका जो ये लिम्फोसाइट था, ये वाला लिम्फोसाइट और ये एंटीबॉडीज़, ये दोनों इस व्यक्ति के जो रोग से निकल चुका है मेमोरी सेल के रूप में पाया जाएगा। और फ्यूचर में, भविष्य में अगर उसका फिर से री इन्फेक्शन होगा तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत उसको किल कर देंगी और उसको रोग नहीं होगा। तो इस दोनों कहानी से आपको क्या समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि पहली बार अगर इन्फेक्शन होगा तो ये रोग में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, रोग हो जाएगा शरीर में। फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी उस एंटीजन से लड़ करके ये रोग ठीक कर लेगी। लेकिन दोबारा अगर उसी डिजीज़ का एजेंट शरीर में आएगा तो अब डिजीज होने का समय नहीं मिलेगा। अब सीधा सीधा क्या करेगा, तुरंत मेमोरी सेल्स को किल करती चली जाएंगी, बिकॉज दिस एडाप्टिव इम्यूनिटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। किसके आधार पर काम करती है? मेमोरी। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि फर्स्ट टाइम, देखिए ध्यान से, फर्स्ट टाइम अगर कोई एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन का इन्फेक्शन हो और उस समय लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज
इसको पहचाने, इसको किल करे, तो इसको प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कहा जाता है। द फर्स्ट एनकाउंटर, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन, फर्स्ट एनकाउंटर शब्द है, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीजन इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा क्योंकि भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, एंड इट विल टेक टाइम, प्लस इसके साथ क्या कह रहा है कि इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक होगा। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होने पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस काम करेगा, एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेमोरी सेल्स। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस की, और इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा कि जो फर्स्ट इन्फेक्शन होगा तो पहले एनकाउंटर में प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जो कि स्लो होगा, लैग्ड होगा, विल टेक टाइम, और जब सेकेंड इन्फेक्शन सेम का होगा तो ये रैपिड होगा, फास्ट होगा, इसको एनामनेस्टिक रिस्पांस कहा जाता है, एनामनेस्टिक बूस्टर रिस्पांस, और ये डिजीज होने से पहले इसे ठीक कर दिया जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए कि पहली प्रॉपर्टी जो थी वह सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करने की थी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या मिली थी, तो ये स्पेसिफिक था। थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको मिल गई कि ये पूरा जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है, यह एडाप्टिव इम्यूनिटी किस पर काम कर रही है, मेमोरी बेस्ड, मेमोरी के आधार पर। और एक लास्ट चौथी प्रॉपर्टी भी याद करिएगा कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, अब देखो चौथी प्रॉपर्टी सिंपल है, ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर अगेन रेज ए क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, खुद से क्वेश्चंस को रेज करो यार, रेज करो, अपने आप नीट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। अगर इस बॉडी के अंदर एक्स एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा स्लो चलना है और यहाँ बिल्कुल फोकस करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए आपको यहाँ रहना है। अगर इस पर्सन के अंदर एक्स का इन्फेक्शन हुआ तो एक्स डिजीज से लड़ने की क्षमता इसमें डेवलप हो गई। बट क्या इस व्यक्ति के अंदर कभी वाई का इन्फेक्शन होगा तो ये वाई के लड़ने की क्षमता इसकी बॉडी में आएगी कि नहीं आएगी? तो आंसर नेचुरली होगा कि आएगी। एक्स के साथ जैसे ये प्रक्रिया चली, फर्स्ट एनकाउंटर, सेकेंड एनकाउंटर बाय मेमोरी सेल, वैसे जब वाई का इन्फेक्शन होगा तो वाई से भी पहली बार तो रोग होगा ही होगा, पहली बार रोग होना है, लेकिन दूसरी बार वो रोग होने से पहले वाई की मेमोरी सेल्स बॉडी में बन जाएंगी। अगर मान लो जेड का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या जेड के साथ भी ये प्रक्रिया होगी? यस, जेड के साथ भी होगी। इससे क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि एक पर्सन अपने जीवन काल में, पूरे होल लाइफ में जितनी बार भी नए नए पैथोजन से अफेक्टेड होता रहेगा, उस अलग अलग प्रकार के पैथोजन से फाइट करने की क्षमता उसमें डेवलप होती रहेगी, और उस पैथोजन, उस एंटीजन, उस डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट में उसके अंदर मेमोरी सेल्स बनती रहेंगी। दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिक, इट इज़ डाइवर्स टाइप। ए को भी मारेगा, बी को, सी को, डी को, एक्स को, वाई को, जेड को, जितने भी एजेंट आएंगे अरे सबको मार डालेगा। लेकिन पहली बार में मारने की प्रक्रिया में धीरे धीरे उसको रिकवर करेगा, और सेकेंड टाइम में एक बार पहचान गया कि वही है, तब फिर उसको देर नहीं लगेगी, तब वो एंट्री करते ही उसे मार डालेगा। पहली बार जो कि करेगा तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, और सेम टाइप के एंटीजन के लिए सेकेंड टाइम करेगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। स्टूडेंट, ये होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी, जो 4 प्रॉपर्टी है। क्या भाई? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी थी स्पेसिफिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी मेमोरी,
एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब दिस सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज ए लॉट ऑफ एंटीजन्स. ओके, देन अब मैं चलूँगा आपको इसके और थोड़े से मेडिकल के क्वेश्चंस को लगाने के लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, all of you must remember the property of this adaptive immunity, students. Property of this adaptive immunity. And property of this adaptive immunity include, look this property. First is this immunity work on the basis of memory. Okay. Second, this immunity based on the specificity. This means specific. This immunity is diversified. Third is diversity. And fourth property of this immunity is discrimination between self and non-self. अब इसको आपको हर हाल में रटना पड़ेगा. अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक ठीक, नहीं समझे होंगे तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं. आप इसको केवल याद कर जाएंगे तब भी आपका काम इमीडिएटली तो हो ही जाएगा. मेडिकल के लिए आगे के लिए देखा जाएगा. एडाप्टिव इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी अब यहाँ पर आता है, जैसा मैंने बोला था कि रेगुलेटेड बाय लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज. प्रश्न है ये, तो इस इम्यून सिस्टम के लिए जो सेल्स फाइट करती हैं, वो सेल्स कितने प्रकार की होती हैं. देखिएगा, मैं लिखता हूँ सेल्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी. सेल्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी. इस एडाप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स कौन कौन सी हैं. एक ऐसी इम्यूनिटी के बारे में जिसकी मेमोरी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी है, डाइवर्सिटी प्रॉपर्टी है, सेल्फ नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की प्रॉपर्टी है. इसके लिए एडाप्टिव इम्यूनिटी की जो सेल्स होती है ना, ये सेल्स एक ही प्रकार की होती हैं. हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी सेल्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लिम्फोसाइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लिम्फोसाइट. अब प्रश्न यहां पर है, इन आवर बॉडी वेयर दीज लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड. कि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य चीज़ है, हमारे बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है, यह एडाप्टिव इम्यूनिटी किस सेल्स के द्वारा काम करती है. तो आंसर है लिम्फोसाइट. और भी सेल्स है, मोनोसाइट है, WBC है, मैक्रोफेजेज है, नो डाउट, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, लिम्फोसाइट. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, हाउ दीज लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड. ये कैसे बनेगा, तो देखिए फॉर्म्ड एक क्वेश्चन है, कैसे होगा. कम टू द बेसिक पॉइंट्स. लुक ए स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर को आप देखिए ध्यान से. इतना भी टेढ़ा नहीं होता है बोन सीधा होता है. ये एक बोन का स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में. इसको हम लॉन्ग बोन बोलेंगे. भाई बोन छोटी नहीं है, कैसी है, लंबी बोन है. और आप सबको पता होगा कि इस बोन के अंदर इनसाइड में बोन मैरो होता है. क्या होता है, बोन मैरो. इस बोन के टर्मिनल रीजन में जब आप आएंगे इधर की तरफ, यहाँ पर, और यहाँ टर्मिनल रीजन में जाएंगे टिप की साइड में, तो यहाँ रेड बोन मैरो होता है. क्या होता है, रेड बोन मैरो. और ये वाइट बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो इसको कहा जाता है. इसको हमें लिख देता हूँ, दिस वन इज द रेड बोन मैरो. बस फॉर ए फ्यू मिनट्स बी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट, then it is certainly clear how these lymphocytes are formed. कैसे ये बनेंगे. तो look this, in the bone marrow, इस बोन मैरो के अंदर एक पर्टिकुलर सेल होती है
जिसका नाम होता है प्ल्यूरीपोटेंट स्टेम सेल। भाई सुनिएगा आप लोग, प्ल्यूरीपोटेंट स्टेम सेल है ना। इस प्ल्यूरीपोटेंट स्टेम सेल का जब डिवीजन होता है तो इसके डिवीजन के द्वारा 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं। दिस प्ल्यूरीपोटेंट सेल्स आर स्टेम सेल इज प्रेजेंट इन बोन मैरो, एंड व्हेन दिस प्ल्यूरीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड देन इट फॉर्म, जब ये डिवाइड करेगी तो दे फॉर्म लिम्फोइड सेल एंड माइलॉइड सेल्स। क्लियर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो माइलॉइड सेल होगी, इस माइलॉइड सेल से क्या बनेगा, इससे मैक्रोफेजेज बनेगा, इससे आरबीसी बनेगा, इससे डब्ल्यूबीसी बनेगा, इससे मोनोसाइट्स बनेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको वैसे भी क्लियर हो गया भाई, बिना कहे पूछे आंसर निकल गया। किसी ने पूछा आरबीसी कहाँ से बना, मैक्रोफेजेस कहाँ से बना, डब्ल्यूबीसी कहाँ से बना, मोनोसाइट्स कहाँ से बना, तो आंसर तो साफ है ना कि ये माइलॉइड सेल से बना। अब दूसरी बात, लिम्फोइड सेल से क्या बनता है, तो इस लिम्फोइड सेल से जब इसका डिवीजन होता है तो एक पर्टिकुलर सेल बनती है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है भाई, दिस इज लिम्फोसाइट्स। अब आई बात ये वाली लिम्फोसाइट कि जो ये एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसकी प्रॉपर्टी मेमोरी है, डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिसिटी है, सेल्फ नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की है, उस मेमोरी सेल्स को, उस एडाप्टिव इम्यूनिटी को चलाने वाली सेल्स का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। और ये हमारे बॉडी में कहाँ बनता होगा, तो आंसर है हमारी बॉडी के लॉन्ग बोन के बोन मैरो में बनता है। कैसे बनता है ये बात भी सामने है। ओके, अब देखिए, जो ये लिम्फोसाइट बनेगा इस लिम्फोइड सेल से इस बोन मैरो में, इसके बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस विल बी प्रीमेच्योर, मतलब ये मेच्योर अभी नहीं है, मेच्योर होने से पहले की लिम्फोसाइट से। अभी ये काम करने के लायक नहीं है, अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ है ना, अब जब ये बड़ा होगा तब ना कुछ करेगा। तो अभी जो बना है इस बोन मैरो के अंदर वो कैसा है, प्रीमेच्योर। और आगे बढ़ जाइए। अब ये लिम्फोसाइट माइग्रेशन करेगा। क्या करेगा, माइग्रेशन कहाँ करेगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। इस डायग्राम को आप देखिए, क्या होता है ये थाइमस ग्लैंड है ना, ये वाला। तो जब ये लिम्फोसाइट, हमारे हार्ट के पास ये ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड, और आप मेडिकल के स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, यही वो ग्लैंड है जो उम्र बढ़ने के साथ साइज में छोटी होती चली जाती है। द थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट क्लोज टू द हार्ट एंड कीप रिड्यूसिंग इन साइज ड्यूरिंग एज। तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती रहेगी इसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी, तो ओल्ड एज में बहुत छोटी हो जाएगी, और उस समय आदमी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड की साइज छोटी होने लगती है, जो हार्ट के पास प्रेजेंट है। देखिए ये है, ये स्ट्रक्चर है थाइमस का, ऐसा। अगर ये लिम्फोसाइट इस थाइमस के अंदर आया और थाइमस में इसकी प्रोसेसिंग हुई, क्या हुई, थाइमस में, तो थाइमस में प्रोसेसिंग के बाद जब निकलेगा तो उसका नाम हो जाएगा टी लिम्फोसाइट। क्या नाम होगा भाई, टी, देखो इसका नाम हो जाएगा टी लिम्फोसाइट। इसको ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ये लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड के अंदर एंट्री करेगा और थाइमस से ये प्रोसेस होके निकलेगा, मेच्योर होके निकलेगा, तो उसका नाम क्या होगा, टी लिम्फोसाइट। पहले ये प्री मेच्योर था, अब ये मेच्योर हो गया। दूसरी बात सुनिए, ये लिम्फोसाइट
अब कहाँ जा सकती है? तो मैं आपको बताता हूँ एक स्ट्रक्चर, आप देखो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका नाम होता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ गट। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की सबसे इनर लेयर का नाम क्या है? एनाटॉमिकली म्यूकोसा, और उसके ठीक बाहर सब म्यूकोसा की लेयर होती है। अगर ये लिम्फोसाइट थाइमस में गया तो टी लिम्फोसाइट बनाया, और सब म्यूकोसा में जाकर के क्या हुआ? तो देखिए इसकी प्रोसेसिंग हुई। क्या हुई? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब इसका मेचुरेशन हुआ। मेचुरेशन, बर्ड्स की बर्सा फेब्रिकस एक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर ये मेच्योर होती हैं। तो ये लिम्फोसाइट ह्यूमन की, मैमल्स की, इसको मैं लिख दूं क्या? मैमल्स, याद रखिएगा, गट ऑफ मैमल्स। मैमल्स के सब म्यूकोसा लेयर में जाएगा और वहां पर ये प्रोसेस होकर निकलेगा, तो इसका नाम होगा, देखिए वो ऐसा होगा, इसका नाम होगा बी लिम्फोसाइट। दिस विल बी बी लिम्फोसाइट, है ना ये। तो कैसे हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनते हैं, इस डायग्राम से बिल्कुल आप क्लियर हो सकते हैं। एक बार और, यही जो बी लिम्फोसाइट होगा, ये बी लिम्फोसाइट प्रोटीन आर्मी, आपके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में प्रोटीन आर्मी बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन की आर्मी। एंड दिस प्रोटीन आर्मी जो ये बनाएगा, उसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा एंटीबॉडी। क्या नाम होगा? एंटीबॉडी, या इसको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इन शार्ट इसको आईजी कहा जाता है, आईजी। जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना मैं चाहता था, यही समझाना चाह रहा हूं कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है ना, एडाप्टिव इम्यूनिटी, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कहते हैं, उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। और ये एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होगी, इसके लिए लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होगा। लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा कि ह्यूमन की लॉन्ग बोन की बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करती हैं। तो इसी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से लिम्फोइड सेल एंड माइलॉइड सेल बनती है। माइलॉइड सेल से मैक्रोफेजेज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट्स बनते हैं, जबकि लिम्फोइड सेल से लिम्फोसाइट बनता है। इस लिम्फोइड सेल से बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट बनेगा वो प्री मैच्योर होगा, दिस इज नॉट मैच्योर्ड। अब ये लिम्फोसाइट इस बोन मैरो से निकलेंगे और निकल करके जब थाइमस ग्लैंड में जाएंगे, और थाइमस ग्लैंड में ये प्रोसेस होके निकलेंगे, वहाँ से वो मजबूत होके निकलेंगे, तो दे आर कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट। थाइमस है तो टी, थाइमस है तो टी लिम्फोसाइट। और वही अगर वो लिम्फोसाइट मैमल्स की गट की सब म्यूकोसा के अंदर जाकर के प्रोसेस होंगे, मेच्योर होंगे, तो उसका नाम क्या होगा? बी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगा, जिसके द्वारा कि हम एंटीजन को किल कर सकते हैं। ये प्रोटीन से बना हुआ आर्मी होती है, इसका नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। लेकिन एक बात हमारी बुक्स ने लिखा है, किताब ने, नीट में जो एनसीईआरटी है, कि ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगा जरूर, लेकिन इसकी हेल्प कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट खुद में एंटीबॉडीज नहीं बनाता, बट ये टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट के, जिससे कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। देन स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर adaptive immunity. I hope all of you well understand about this concept. If not, then please see repeatedly 1 or 2 times, then it will be clear.
Now in second lecture, in next lecture, I will discuss the mechanism of antibodies, the structure of antibodies and their mechanism, different property, tricks, formula, mnemonics about the antibodies. So students, please wait for the next lecture. But before the next lecture, please subscribe the channel, because whenever you subscribe the channel, you will get the new lectures of the NEET preparatory exams for a short and rapid revision. Okay students, we'll meet in the next lecture. Till bye. Thank you.